Good morning, students, and welcome back to your English class. Students, we have started reading this story in our last online class, but today, due to low network quality, we were unable to conduct that class. So, I'm preparing this video for you. So, let us start reading the story. The God of River. What we have read here, we have read the story up to here, but let us start it once again. So once there was a small village called Dhampur. So this is the story of a small village and the name of the village is Dhampur. ये एक गांव की कहानी है जिसका नाम है धामपुर. Kishan, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. Now Kishan, he is a farmer. Who is a farmer? Farmer is that person who works in his fields and grow crops. Who did farming? Who does farming? They are farmers. So जिसको किसान बोलते हो आप लोग. So Kishan, a farmer, वो एक किसान है. He lived with his family in a small cottage. Cottage means hut, a very small house that is made of mud and grass. Okay, so in the village. So Kishan was a farmer and he lived with his family in that small village. And which is the village? Dhampur. Okay, so here students see Dhampur, D is capital here, and it's the name of the village, particular village where Kishan lives. So Dhampur is a proper noun, special noun. We have read naming words, so it's a special name. Similarly, Kishan is also a special name, but farmer, cottage, family and village, they are common names. Next is he had a son Ramesh. Now he is having a son. He was having a son and his name of his son was Ramesh. Ramesh was 11 years old. And what is the age of Ramesh? He is 11 years old. वो कितने साल का है? 11 साल का. कौन? रमेश, किशन's son. Kishan went to the fields for farming and Ramesh went to a school near the village. Now what is their daily routine? Kishan keep on going to his fields every day and work in his fields while Ramesh went to a school near the village. There is a school near his village and he went to school every day. So whenever Ramesh's mother cleaned the house, now it's turn for mother. Now what is the mother's job at home? Whenever she cleaned her house, she told him to collect the garbage. And who is him here? Him is for Ramesh. So she told him to collect the garbage and throw it away. So वो क्या करती हैं? वो उसको बताती हैं, किसको बोलती हैं? अपने बेटे को, रमेश को, कि सारे गार्बेज को कलेक्ट करे और वो पास में कहीं फेंक आए. एंड थ्रो इट अवे, और इसको कहीं फेंक आए. अवे मीन्स दूर, कहीं दूर फेंक आए. ही कलेक्टेड द गार्बेज. कलेक्टेड मीन्स गैदर. तो वो कलेक्ट करता है सारे गार्बेज को. हु इज़ ही हियर? ही इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड. वी हैव रेड इन द आर practice book. So he here stands for Ramesh. I have told you that we use he for the boys. कि हम he का यूज़ किसके लिए करते हैं? boys के लिए. तो यहाँ पे boy कौन है? रमेश. तो रमेश के लिए हम बार बार नेम नहीं लिखेंगे. बताया जैसे आपको रिप्लेसिंग वर्ड समझाए हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? he collected the garbage and threw it into the river. तो वो क्या करता है? गार्बेज को कलेक्ट करता है और कहाँ फेंकता है? जाके एक रिवर में. और कौन सी रिवर? दैट फ्लोड नियर देयर हाउस, जो कि उनके घर के पास ही बहती है, नज़दीक ही बहती है. दिस वॉज हिज डेली रूटीन. तो दिस वॉज द डेली रूटीन ऑफ रमेश. ही एवरी डे कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम हिज हाउस एंड थ्रो इट इन टू द रिवर. मैनी अदर फैमिलीज आल्सो डिड द सेम. सो अदर फैमिलीज इन द विलेज, दे आल्सो डिड द सेम. They also throw the garbage of their house into the river. The place where people threw the garbage became very dirty. Now the place where the people keep on throwing their garbage, it had become very much dirty and smelly, and foul smell was coming out from there. But nobody bothered. Bothered means scared or worried. लेकिन किसी को चिंता नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है कि what we are doing. One day when Ramesh was about to throw the garbage, अब क्या हुआ? One day when Ramesh was going to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown come out of the river. Now what is a crown? Crown is a type of, you can say it's a type of hat made up of gold and jewels.
ओके, जो सोने का बना होता है या दूसरे हीरे मोती उसमें जड़े होते हैं, जो दूसरे माणिक्य वगैरह, तो जिसको कि राजा लोग जो हैं द किंग्स दे कीप ऑन वेयरिंग ऑन देयर हेड, जो कि राजा लोग जो हैं वो अपने सिर पे पहनते हैं, जिसको मुकुट कहते हैं. सो हियर विच टाइप ऑफ क्राउन? गोल्डन, मेड ऑफ गोल्ड. सो कम आउट ऑफ द रिवर, तो वो नदी से बाहर निकले. ठीक है. सो ही वॉज टॉल एंड फेयर एंड हेल्ड अ गोल्डन पॉट फुल ऑफ वाटर in his hand. So who is he here? The man the man who was wearing a golden crown and was coming out of the river. He was tall and fair, and he was fair also. Fair means गोरा कलर, जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है. एंड हेल्ड अ गोल्डन पॉट, और उनके हाथ में क्या है? पॉट मीन्स अ टाइप ऑफ यूटेंसिल, एक बर्तन है उनके हाथ में. ठीक है. और किस चीज़ का बना है वो? गोल्ड का, मेड ऑफ गोल्ड. फुल ऑफ वाटर, और उसमें क्या है? पानी है. इन हिज हैंड, वो उनके हाथ में है. सो बट ही लुक्ड वेरी सैड, बट ही वॉज लुकिंग वेरी सैड. रमेश फेल्ट स्केयर्ड. स्केयर्ड मीन्स फ्राइटनड. रमेश गॉट scared. रमेश डर गया. He got frightened. But he soon took the courage. But soon he gathered his courage. उसने हिम्मत जुटाई. Courage means हिम्मत. And asked the person who he was and why he was so sad. And he asked him that who are you and why are you looking that much sad? Okay, students, courage means himmat, and in English you can say it like the ability of a person to encounter danger. Okay. Next is the person said slowly. Now the person who came out of the river, he said very slowly, I am the god of water. Who am I? I am. Students, see this word, these words. I and apostrophe is there on the top, and then M is written. It means I am. I am the god of water. कौन हूँ मैं? God of water हूँ. God क्या होता है? भगवान. So मैं पानी का भगवान हूँ, पानी का देवता हूँ. I have been. Now see here, I and apostrophe is on the top and V is written. It means I have. I have been living in this river for many years. मैं इस रिवर में, I am living in this river for so many years. बहुत सालों से मैं इस नदी में रह रहा हूँ. I am sad. Again I am here. I am sad because you are always throwing garbage into my water and polluting it. Why am I sad? Because you are throwing garbage into my water. You are throwing the garbage from your house into my water and polluting it. Polluting means making dirty, गंदा करना, और इसको आप गंदा कर रहे हो कचरा फेंक कर. Garbage means कचरा, junk. This river has now become very dirty. अब ये नदी बहुत गंदी हो गई है. It has become too much polluted, too much dirty. What do you mean by polluting river? Asked Ramesh. Now Ramesh asked him that what do you mean? आपका क्या मतलब है by polluting river, कि हम river को pollute कर रहे हैं, dirty कर रहे हैं. What do you mean by this? The water god said. Now the water god said, when you throw garbage into the water, it gets dirty. जब आप कचरा फेंकते हो मेरी नदी में, मेरे पानी में, then it becomes dirty. तो ये obviously गंदा हो जाता है. The garbage contains chemicals and plastics which are very harmful for the fish. Now ये जो garbage जो आप थ्रो करते हो everyday water में, इसमें क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, समटाइम्स प्लास्टिक्स होते हैं, विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं. किसके लिए? फिश के लिए. इट हैज़ जर्म्स टू. इसमें क्या होते हैं? जर्म्स. जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्प्रेड डिजीजेस. कीटाणु. ठीक है, कीटाणुओं को जर्म्स कहते हैं. सो इट हैज़ जर्म्स टू. इसमें जर्म्स भी होते हैं. इफ़ समवन ड्रिंक्स दिस वाटर, और अब कोई इस नदी का अगर पानी पीता है, ही और सी में कैच डिजीजेज लाइक टाइफाइड. स्टूडेंट्स लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन, टाइफाइड एंड जॉन्डिस. सो अगर कोई इस नदी का पानी पीता है, सो वो क्या हो जाएगा? ही विल कैच द डिजीजेज. उसको बीमारियां लग जाएंगी. और कौन सी? टाइफाइड एक बीमारी का नाम है. ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा बुखार लग जाते हैं मरीज़ को, पेशेंट को. एंड जॉन्डिस, और ये जॉन्डिस भी एक बीमारी है. ठीक है, इसमें क्या होता है?
लीवर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सो जो भी गंदा पानी पिएगा उसको कौन सी बीमारियां लग जाएंगी, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। नाउ रमेश वाज सरप्राइज टू नो ऑल दिस। नाउ रमेश गॉट सरप्राइज्ड, ही गॉट वंडर्ड, वो हैरान हो गया। सरप्राइज मीन्स गॉट वंडर्ड और हैरान हो जाना। रमेश हैरान हो गया टू नो ऑल दिस। ही फेल्ट गिल्टी फॉर पोल्यूटिंग द रिवर सो मच। नाउ ही इज फीलिंग गिल्टी। गिल्टी मीन्स ही इज फीलिंग लाइक ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, अपराध बोध होना, उसको अब दोषी महसूस हो रहा है। फॉर पोल्यूटिंग द रिवर सो मच, कि हमने इस नदी को इतना गंदा कर दिया। ही टुक हिज गार्बेज एंड वेंट बैक टू हिज होम। अब उसने अपना गार्बेज अभी फेंका नहीं था, अपना गार्बेज उठाया और वापस अपने होम चल पड़ा, अपने घर की ओर वापस चला गया। नेक्स्ट डे रमेश वेंट टू हिज स्कूल एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर। नाउ नेक्स्ट डे व्हेन रमेश वेंट टू हिज स्कूल, जब वो अपने स्कूल गया, सो ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स हिज फीलिंग्स, वट ही एनकाउंटर्ड द प्रीवियस डे, अनुभव। सो ही शेयर्ड, उसने अपना साझा किया, बांटा, किसके साथ, अपना अनुभव अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर के साथ। द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पॉल्यूशन। तो टीचर ने क्या किया, उसको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। फिर जब उसने टीचर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे साथ ऐसे हुआ लास्ट डे, तो टीचर ने उसको और भी ज़्यादा जानकारी दी अबाउट वाटर पॉल्यूशन, के पानी का जो प्रदूषण है। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, टू मेकिंग समथिंग डर्टी विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो वाटर पॉल्यूशन, तो उन्होंने जल प्रदूषण के बारे में भी उसको जानकारी दी। द टीचर सेड, we throw domestic and industrial waste, flowers and so many other things into the river. Now teacher told him कि what we keep on throwing into the water, we throw domestic, domestic means related to your home, your house, घरेलू, ठीक है। हिंदी में इसको घरेलू कहेंगे, इंग्लिश में आप लोगों को बोलना हो, सो यू कैन से दैट रिलेटेड टू योर होम और हाउस। एंड इंडस्ट्रियल मीन्स परटेनिंग टू इंडस्ट्रीज, रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनका वेस्ट हम पानी में फेंक देते हैं, बहा देते हैं। फ्लावर्स, जब भी देखो आपके घर में कोई पूजा वगैरह होती है तो जो ऑफरिंग्स होती हैं बच जाती हैं आफ्टर हवन और उसके यज्ञ के बाद, तो क्या करते हैं, उन सबको कलेक्ट करते हैं, जाओ जी नदी में फेंक दो नियर बाई जहाँ पे भी पानी बह रहा है। सो दे फ्लावर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स इनटू द रिवर, और भी बहुत सारी चीज़ें हम बिना सोचे विचारे क्या करते हैं, नदी में फेंकते हैं। आप लोग भी करते हैं ऐसे, तो नेक्स्ट टाइम नहीं करना है ऐसे। देखो कितना नुकसान होता है इस चीज़ से। दीज थिंग्स पोल्यूट आर रिवर्स एंड मेक दैम डर्टी। सो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारा रिवर्स जो है वो गंदी हो जाती हैं, दे गॉट पोल्यूटेड एंड मेक दैम डर्टी, और वो बहुत पोल्यूटेड हो जाती हैं, डर्टी हो जाती हैं। वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन। अब क्वेश्चन है रमेश का कि सर इफ़ वी डोंट थ्रो द गार्बेज इनटू द रिवर देन वेयर शुड वी थ्रो द गार्बेज, तो हम गार्बेज को कहाँ फेंकें, अब घर पे तो नहीं रख सकते हैं। सो आस्क्ड रमेश आस्क्ड, द टीचर रिप्लाइड। अब टीचर ने देखो क्या बताया उसको, और आप लोगों ने भी ये फॉलो करना है अपने अपने घरों में, ठीक है। अगर कोई आपके नियर बाई नेबर्स भी ऐसे करते हैं तो उनको भी गाइड करना है कि ऐसे मत करिए, आप हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी सराउंडिंग्स को पोल्यूट कर रहे हैं, उससे ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। घर में अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको ये बताना है कि नेक्स्ट टाइम से गार्बेज बाहर नहीं फेंकेंगे, और क्या करना है गार्बेज के साथ, जैसे यहाँ पे रमेश के टीचर ने बताएंगे वैसे ही आप लोगों ने भी फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, मेक इट अ हैबिट। डिग अ पिट आउटसाइड योर हाउस। क्या करिए, डिग अ पिट आउटसाइड योर हाउस, अपने घर के बाहर कोई एक पिट, गड्ढा खोदिए, ठीक है, अपने खेतों में। एंड पुट ऑल द गार्बेज इनटू दैट पिट, और आप अपना गार्बेज जो है, कचरा जो है उसमें वो डालिए। व्हेन द पिट इज़ फुल, जब वो पिट भर जाए, गड्ढा भर जाए, कवर इट विद लीव्स, उसको पत्तों से, मिट्टी से ढक दो। लीव इट फॉर अ फ्यू डेज, उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दो ऐसे ही। लीव इट फॉर अ फ्यू डेज एज इट इज़, द गार्बेज विल टर्न इनटू मैनुअर, तो उसका क्या बन जाएगा, गार्बेज का मैनुअर बन जाएगा, खाद बन जाएगी, ठीक है। सो योर फादर कैन यूज़ द मैनुअर इन हिज फील्ड्स। सो फादर कैन, अब उसके टीचर बोल रहे हैं, रमेश के टीचर इज टेलिंग टू रमेश कि योर फादर कैन यूज़ दैट मैनुअर इन हिज
fields. Ramesh was very happy at the idea. Now Ramesh became very happy at this idea that it's very helpful for the father also. It will also protect our environment. So his father dug a pit the same day. तो उसने जाके अपने पापा को बताया and they dug a pit the same day. उसी दिन उन्होंने एक पिट बनाया बाहर अपने घर के बाहर अपने खेतों में एंड दे स्टार्टेड थ्रोइंग द गार्बेज इनटू द पिट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर. और उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया गार्बेज को कहाँ फेंकना, पिट में, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर, उसको नदी में फेंकने की जगह पे. इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ मीन्स इन प्लेस ऑफ, उसके स्थान पे उन्होंने क्या किया, उसको नदी में फेंकना स्टार्ट कर दिया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी. The god of the river. And what we read in the story, we read that how the god of river, he made Ramesh realize his and his villagers mistake. Means कि god of river ने जो है वो रमेश को ये फील कराया कि वो और उसके गांव के लोग कितना गलत काम कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, इससे उन्हीं लोगों का नुकसान होगा इन फ्यूचर. सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी ये फॉलो करें घर में, कचरे को इधर उधर ना फेंकें. जहाँ पे कचरा गाड़ी आती है तो वो कचरा गाड़ी वालों के पास दें, क्योंकि वो रिसाइकलिंग से उस पे लेके जाते हैं उसको रिसाइकिल करने के लिए. ठीक है, जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट होता है, किचन वेस्ट, उसको आप घर में अपने खेतों में पिट खोद के डालिए, मैन्योर बनाइए. ठीक है, और वो आपको जो फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं उसके प्लेस पे भी वो बहुत यूटिलिटेरियन है, बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है. So I hope students you also have learnt a very nice message from this story, and you all of you have enjoyed reading this story with me. And now your homework, it's turn 5 homework. What is your homework for today? You will try to find out at least 4 or 5 special names, and at least common names are so many given here. At least 4 or 5 special names and 10 common names from this chapter, the god of river. So students, thank you very much. Have a nice day.